Good morning to all. In this video, we will discuss about impact of jet, that is force exerted on fixed vertical and inclined plate. First of all, we will see the word-to-word meaning of impact and jet. So, what is impact? The action of one object coming forcibly into contact with another. And what is jet? The fluid streams coming out from the nozzle, which the high velocity is known as jet. With the high velocity is known as jet. And now impact of jet. Force exerted by the fluid jet on a plate. The plate may be flat, curved or inclined, which may be fixed or moving. In this video, we will see the force exerted on fixed vertical and inclined plate. So first of all, we will see the force exerted by the jet on a stationary vertical plate. Consider a jet of water coming out from the nozzle strikes a flat vertical plate as shown in figure. In next slide, we will see the figure. Here consider velocity. V is equal to velocity of jet and D is equal to diameter of jet and A is area of cross section of the jet. The formula for area of cross section of the jet is pi by 4 D square. Okay. See the diagram for force exerted by the jet on stationary plate. When water comes out in the form of jet from outlet of the nozzle, which is fitted to a pipe through which the water is flowing under pressure and with high velocity. जब यहाँ पे ये पाइप को हमने एक नोजल फिट किया हुआ है, जहाँ से क्या होगा, जो पाइप का वाटर फ्लो हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी नोजल में, और जो वेलोसिटी है वो हम लोग v से डिनोट करेंगे. ओके. नाउ जब हम प्लेट पे जब कोई वाटर स्ट्राइक होगा तो वो वर्टिकली स्प्रेड हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं रहेगा. जो अपना फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो वर्टिकली फ्लो होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं रहेगी. ओके. तो यहाँ पे हमने देखा है, ये इस डायग्राम में एक पाइप देख रहे हैं जहाँ पे नोजल फिट किया हुआ है. वहाँ से क्या हो रहा है, जो जेट है वो गैप, उसमें जो वाटर है वो एक प्रेशर से ज़्यादा हाई प्रेशर से फ्लो होगा और स्ट्राइक होगा ऑन द फिक्स्ड प्लेट. ओके. नाउ see, the jet after striking the plate will move along the plate, but the plate is at right angle, so the jet, hence the jet after striking will get deflected through 90 degree. Hence the component of the velocity of jet in the direction of the jet after striking will be 0. Okay. The force is obtained by Newton's second law, that is Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the same direction in which the force acts. हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पता है, that is mass into velocity. See here, the force exerted by the jet on the plate in the direction of jet, that is f of x. हमको क्या निकालना है, force exerted on फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट. दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, वो निकालना है. दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्या रहता है वो, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी. ठीक है, मास पर टाइम अपॉन इंटू वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. ओके. तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, सी हियर, फिर से हम लोग डायग्राम देखेंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी v से जब फोर्स स्ट्राइक हो रहा है ऑन द प्लेट, जो हमारी वेलोसिटी निकल रही है और जो फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो हमारी क्या है, वो हॉरिजॉन्टली है, इसमें वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली, और इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो कोई भी नहीं है, वेलोसिटी फ्लो नहीं हो रही है. दैट मीन्स इट विल बी 0. तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या लेंगे, 0 लेंगे. सी हियर,
तो क्या आएगा, मास पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग। जो जेट रहेगा आफ्टर स्ट्राइकिंग उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0, और मास पर टाइम क्या रहेगा अपना, रो ए वी। हम इसको रो ए वी स्क्वेयर, हम लोगों को फाइनल जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वर्टिकल प्लेट जो फॉर्मूला मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, रो ए वी स्क्वेयर। ओके, so we get the equation for force exerted by the jet on a stationary vertical plate, that is rho a v square. For deriving above equation we have taken initial velocity minus final velocity and not final velocity minus initial velocity. If the force exerted on the jet is to be calculated, then final minus initial velocity is taken. But if the force exerted by the jet on the plate is to be calculated, then initial velocity minus final velocity is taken. Okay. Now next is force exerted by a jet on a stationary inclined plate. हम लोग instead of vertical plate की क्या कर रहे हैं, stationary inclined प्लेट ले रहे हैं. ओके, लेट अ जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल स्ट्राइक एन इंक्लाइंड प्लेट एज शोन इन फिगर. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिगर देखेंगे. लेट वी इज द वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. थीटा इज द एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट and A is the area of cross section of jet, and then mass of the water per second striking the plate is rho a v. Okay, now see the diagram for force exerted by a jet on stationary inclined plate. क्या हो रहा है यहाँ पे, जब पाइप से नोजल थ्रू जेट फ्लो हो रहा है और इम्पैक्ट हो रहा है ऑन द स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट, तो क्या होगा, वहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स प्रोड्यूस होगा. ओके, हियर वी आर कंसिडरिंग नॉर्मल फोर्स बिकॉज प्लेट इज इंक्लाइन एंड जेट इम्पैक्ट्स हॉरिजॉन्टली ऑन प्लेट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रोड्यूस हो रहा है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मल फोर्स, जिसको हम लोग एफ एन से डिनोट करेंगे. अगर हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं तो वी गेट एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा एंड एफ एन साइन 90 माइनस theta. Okay, if the plate is smooth and if it is assumed that there is no loss of energy due to impact of jet, then jet will more over the plate after striking with the velocity equal to initial velocity, that is with a velocity v. जब जेट इम्पैक्ट करेगा इंक्लाइन प्लेट के ऊपर, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका जो सरफेस है, सरफेस ऑफ द प्लेट है, वो क्या है, स्मूथ कंसिडर करेंगे. उस वजह से क्या होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा जब जेट इम्पैक्ट करेगा ऑन द इंक्लाइन प्लेट. ओके, तो जो वेलोसिटी रहेगी हमारी, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो सेम, जो आउटलेट वेलोसिटी जो रहेगी वो सेम रहेगी इनिशियल वेलोसिटी के. लेट अस फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन प्लेट in the direction normal to the plate, then this force is represented by Fn. अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स फाइंड आउट करेंगे. वी नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम Fn इक्वल्स टू मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी यहाँ पे, v साइन थीटा. क्यों v साइन थीटा ले रहे, क्योंकि v साइन थीटा जो ये है हमारा नॉर्मल फोर्स है, वो क्या रहेगा, नॉर्मल फोर्स रहेगा, जो वेलोसिटी रहेगी अलोंग विथ नॉर्मल फोर्स रहेगी. तो वी गेट द वैल्यू फॉर एफ एन इज रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा. नाउ दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, वन इन the direction of the jet and another perpendicular to the direction of flow. Then we have fx, जो x डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, जो कंपोनेंट ऑफ fn, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ x. क्या उसको मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि जो x डायरेक्शन में रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, fn cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, और जो cos 90 माइनस थीटा हम उसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं. दैट्स वाई वी गेट द वैल्यू fn साइन थीटा. ओके, और एफ एन की वैल्यू
हमको जैसे कि पता है रो ए वी स्क्वेयर साइन थीटा, तो वो हम लोग एफ एन की जगह पुट करेंगे तो हमको एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मिलेगी रो ए वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. And now Fy. What is Fy? Fy is the component of Fn perpendicular to the flow. See here, Fn sin 90 degree minus theta. जो Fy का कंपोनेंट है, Fn का कंपोनेंट है इन y डायरेक्शन, वो क्या रहेगा? Fn sin 90 माइनस थीटा. तो हम लोग Fn की अगर वैल्यू पुट करते हैं, sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है. तो वी गेट द वैल्यू Fn cos थीटा. देन जो एफ एन की वैल्यू है दैट इज रो ए वी स्क्वेयर साइन थीटा, ये पुट करेंगे तो वी गेट द इक्वेशन फॉर एफ वाई दैट इज रो ए वी स्क्वेयर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों जो हमारे नॉर्मल फोर्स के कंपोनेंट है इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन वो फाइंड आउट कर दिए. नाउ वन न्यूमेरिकल ऑन दिस. A jet of water of diameter 75 mm having a velocity of 25 meter per second is strike a fixed plate in such a way that a angle between jet and plate is 60 degree. Find the force by jet on the plate. यहाँ पे क्या है, एक इंक्लाइन प्लेट कंसिडर किया हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने फाई था वो हम लोगों का कितना है 60 है, ठीक है. और डायमीटर ऑफ जेट जो रहेगा दैट इज डी क्या रहेगा 75 mm. जो जेट की डायमीटर है वो रहेगी हमारी 75 mm. हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. और जो वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ जेट जो दिया हुआ है वो है हमारा 25 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल दिया हुआ है 60. हम लोग डायमीटर से एरिया पहले फाइंड आउट कर लेंगे. ओके तो वो हमारी वैल्यू आ रही है 4.417 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वेयर. देन हम लोग नॉर्मल डायरेक्शन में पहले फाइंड आउट करेंगे. हमको नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स मिला था रो ए वी स्क्वेयर साइन थीटा. वैल्यूज पुट करने के बाद वी गेट दिस वैल्यू 2390 न्यूटन. एंड देन टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द जेट, डायरेक्शन ऑफ द जेट क्या होगा हमारे पास, क्या है इक्वेशन, रो ए वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा. वैल्यूज पुट करेंगे वी गेट द फोर्स exerted on x direction, we get this value 2070 न्यूटन. ओके तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं. थैंक यू.